Okay, so today we will discuss about the resources for sociology. So these are the resources I have noted them down. These are resources which one finds in various toppers videos and in various websites when they have listed in also various coaching institutes also they have these set resources. So what I'm trying to do here is कि मैंने सारे resources को list किया है और I will just try to give overview कि इसमें actually है क्या, मतलब ये resources are what we can get. So basically मैंने सारे resources कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, मतलब पूरे तो नहीं बट सबको overview मैंने पढ़ा है, क्योंकि जब मैं decide कर रहा था when I was deciding कि which source I will opt, so I have to get into it ना किसमें है क्या actually. So इन सारे resources के थ्रू मैं गया हुआ हूँ और उनमें से मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी. So in the comments part I will try to write कि इनमें क्या है actually. और ये वीडियो इसलिए ताकि you can make your own decision okay, which resource I should opt for, what are your demands. Maybe you have read something, maybe you want to enrich your resources, maybe you want to enrich your notes from any other resources. Maybe your goal is to get syllabus from grounds up, basic से जाना है अपन को, अपने को नहीं आता sociology. So I will try to discuss all of this in this video. So yeah, so we have first we have essential of sociology, Upendra sir's note, Mohapatra sir's note, then class 11th and 12th NCERTs. Then we have Harlan Bose book, IGNOU Sociology BA MA का material. We have Tushar Anshu sir's note, then Ritza, Sleepy classes videos also. These are the videos which were made when Sleepy classes was free. तो I'm not sure कितने अभी available हैं free में, but YouTube में they have that. खैर, then we have other resources also. तो other resources में we can have some books, we have some other toppers notes, some other coaching institutes notes. So there are various sources, but usually I found that these resources are discussed mostly everywhere. I am yet to find any out of the box resources apart from these one. But yeah, there could be some other strategy, some other topper they might have used something else. And also people also use some website plus they also use websites and a dictionary, sociology dictionary to understand the words. But Google search is enough to understand. Just write sociology after the word, so उसमें sociology की definition आ ही जाती है. तो dictionary भी okay, you can use website. There are some. I will try to find and write in the message of Telegram only. Okay, so let's see the comments on it. So what I find is कि basically we need one solid resource. Like solid as in what I mean by solid is कि हमें जिससे almost सारा पढ़ना ही है, उसको हमें पूरा देखना ही पड़ेगा. So उस कैटेगरी में we have three. तो नितिन सांगवान book is one, Upendra sir note is one, Mohapatra sir's note is one in that regard, and IGNOU is also in one thing that could be done like that कि पूरा मतलब जिससे अपन को पूरा पढ़ना हो. फिर तुषार अंशु नोट्स भी एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है. तो ये सारी बुक्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव कर सकती हैं. फिर अपन आते हैं जिससे हम कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हर्लम बुक्स यूज करते हैं. रिट्जर स्लीपी क्लासेस की वीडियोस कुड बी यूज फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग. एंड देन वी हैव एनसीईआरटीज. हालांकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, दिस इज फॉर बेसिक थ्योरीज ओनली, बट या यू कैन डू इट. एंड देन वी हैव दीज रिसोर्सेज लाइक रूरल सोशियोलॉजी बाय एस एल दोषी. इसमें पेपर टू का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, काफ़ी सारा नहीं बट एग्रेरियन कंटेंट है इसमें, एग्रीकल्चर के बारे में भी है इसमें, है ना. फिर राम आहूजा सर का सोशल इश्यूज, एंड देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बाय योगेंद्र सिंह. योगेंद्र सिंह का तो आपको पूरा एक चैप्टर में है ही डिटेल में, बट ये आप अलग से टू कॉम्प्लीमेंट दैट पढ़ सकते हैं. खैर, तो मेरा इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का ये मोटिव था कि आपको एक सोर्स तो रखना ही पड़ेगा ताकि आप पूरा पढ़ सको. तो दैट कुड बी आइदर दिस वन, आइदर उपेंद्र सर नोट, आइदर महापात्रा सर नोट. और अगर इफ़ यू आर फीलिंग वेरी ब्रेव तो ये भी हो सकता है, बट आई वोंट सजेस्ट कि इसको पूरा करना, क्योंकि इनसे ही सारे रिसोर्सेज बने हैं ऐसा मुझे लगता है. जब मैंने व्हेन आई वेंट थ्रू इट ना, मतलब नॉट होली दे आर मेड फ्रॉम इट, बट यही सबका बेसिस है. लाइक द स्ट्रक्चर दे हैव पुट अ चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप ले लो, सपोज मेथड्स वाला चैप्टर आप ले ली पेपर वन में, तो उस वो जिस तरीके से इग्नू में है वैसे ही लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी अपने अपने नोट्स और अपने अपने बुक्स में, क्योंकि सबका एक बेस मटेरियल तो इग्नू ही था. जहाँ तक इग्नू बेसिकली क्या है, बीए और एमए का रिसोर्स है. बीए और एमए सोशियोलॉजी वाले ही बाद में जाके पीएचडी भी करते हैं, तो ये उनका बेस है, तो ये हमारी बुक्स का ही बेस बन जाता है ना. तो हालांकि आई आई वोंट सजेस्ट इग्नू, बट ठीक है, किसी को करना है इग्नू से तो वो इग्नू से भी कर सकता है. आई हैव सीन प्रत्युष जो है सीनियर है वो,
फ्रॉम माय कॉलेज ओनली, उन्होंने भी सोशियोलॉजी ऑप्शन दिया था, तो उन्होंने जहाँ तक सजेस्ट किया था कि उन्होंने इग्नू से किया है कवर, तो मतलब इट्स वेरी ब्रेव ऑन हिम। खैर बट ही इज आईएएस नाउ, तो ठीक है। खैर मूविंग फॉरवर्ड, सो these resources could be used as a base, है ना। अब इसमें से क्या यूज करना है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। जहां तक मैंने देखा है, कई लोग उपेंद्र सर के नोट्स यूज करते हैं, कई लोग मोहपात्रा सर के नोट्स यूज करते हैं, कई लोग एसेंशियल सोशियोलॉजी यूज करते हैं। मैंने ये किया था। उसका कारण ये था, आई फाउंड इट वेरी स्ट्रक्चर्ड, है ना। बुक है ना ये, तो बुक इज वेरी स्ट्रक्चर्ड है बहुत, है ना। सब बुक है, तो यू फाइंड इट अ प्रिंटेड वर्जन ऑल्सो। आप इसको प्रिंटेड वर्जन आपको इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से मंगा सकते हो, वो इसका साथ बेनिफिट है। फिर इसमें यू डोंट फाइंड, मतलब किसी के हैंड रिटन नोट्स नहीं है ये, तो नो राइटिंग इजीली अंडरस्टैंडेबल है, स्टैंडर्डाइज बुक है। मतलब आपके पास जो है, आपके दोस्त के पास भी वही होगी, किसी के पास अलग थोड़ी होगी बुक, है ना। तो स्टैंडर्डाइज बुक है, तो एक स्टैंडर्डाइज सोर्स बन जाता है, स्टैंडर्डाइज सोर्स बन जाता है ये। तो इसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। और मैंने तो ये यूज करी थी, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए थी, स्ट्रक्चर्ड। अब उपेंद्र सर के नोट्स पाते हैं, तो बहुत डिटेल्ड है, नोट्स हैं तो ऑलरेडी रिफाइंड है। इसमें कुछ आपको जार्गन्स वगैरह मिल, सॉरी जार्गन्स नहीं कहना चाहिए, इसमें कुछ आपको नॉन एसेंशियल भी मिल सकता है, बट ये काफी टू द पॉइंट है नोट्स, क्योंकि ये नोट्स हैं, उन्होंने रिफाइन कर रखे हैं, तो ये काफी बच्चे यूज करते हैं। बट ये वही यूज करे जिनको दूसरों की राइटिंग समझ में आ जाती है, बिकॉज दीज आर रिटन नोट, प्रिंटेड नोट्स नहीं है, है ना। एज फार एज आई नो, मेरे को जो मिले हैं वो सारे के सारे रिटन नोट्स है, हैंड रिटन, नॉट प्रिंटेड नोट्स। तो इसके साथ ये इशू है, बट लेकिन ये कंटेंट बहुत अच्छा है। कई लोग से बोलते हैं कि मोहपात्रा सर के नोट्स पेपर वन के लिए अच्छे नहीं हैं, बट आई डोंट थिंक सो। सब में सेम सेम सी चीजें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कुछ। बट हाँ, ये है कि उपेंद्र सर के नोट्स पेपर वन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। स्ट्रक्चर तो खैर आई वुड से दोनों ही स्ट्रक्चर्ड है, बट एज इन कंपैरेटिव एनालिसिस में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हुई, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है। ये उससे थोड़ा कम स्ट्रक्चर्ड होगा, बिकॉज इट्स हैंड रिटन नोट। कभी कभी बंदे क्या करते हैं कि समथिंग इज टॉट, वो स्ट्रक्चर मतलब वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से नहीं पढ़ा है, कुछ चीज़ पहले पढ़ाई थी, कुछ चीज़ बाद में पढ़ा दी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल यू आर इन, सपोज इन चैप्टर नंबर 2, आप यू आर गोइंग थ्रू मेथडोलॉजी वाले चैप्टर नंबर सी इन चैप्टर नंबर 2, यू आर इन चैप्टर नंबर 2। उधर पे मान लो कोई थिंकर घुसा दिया है ना, तो यू विल फाइंड कि यार थिंकर के बारे में इतना पता नहीं था, पर ये थोड़ा सा डाल दिया है, तो वो समझ नहीं आ रहा है क्या है। हालांकि वो चीज़ स्लीपी क्लास में भी होती है, बट खैर वो विद टाइम ठीक हो जाता है, तो ये भी विद टाइम ठीक हो ही जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर वाली भी इशू नहीं है इतनी ज़्यादा, जिसको करना है वो कर लेता है, बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव पेपर, नो। मतलब काफ़ी पढ़ना तो है ही, मतलब ऑब्जेक्टिविटी इतनी नहीं है इसमें। तो आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट भी सब्जेक्टिव है, तो आप भी सब्जेक्टिव हो सकते हो। तो ये कर सकते हो। पेपर वन के लिए लोग कहते हैं इसको, बट आप दोनों पेपर के लिए दोनों रिसोर्स यूज कर सकते हो, आप दोनों ट्राई कर सकते हो, दोनों पेपर खोल के देख लो, पलटा के देख लो क्या प्रिफर्ड है, या तीनों को पेपर खोल के देख लो। बट मैंने बता दिया कि मेरे को तो ये चीज़ की पसंद आई थी बुक की, तो मैंने ये चीज़ के कारण, स्टैंडर्डाइज और स्ट्रक्चरल के कारण मैंने किया था इसको। और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, सारे थिंकर्स वगैरह हाईलाइटेड है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं थी। नोट्स में इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू गोइंग थ्रू विद समवन एल्सेस राइटिंग, समवन एल्सेस आइडिया, तो आप कर सकते हो। बट मैं तो इसको सिर्फ एनरिचिंग के लिए प्रेफर कर रहा था, एनरिचमेंट के लिए। वो भी वो भी इसलिए क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि सबने बोला इसलिए, नहीं तो मैं वो भी नहीं करता। तो let's say, but this could be used for as an initial resources. And also same goes for igno also, same thing for igno. It's a structured book, it's also a book, course material तो book तो है ही, but you have to selectively from syllabus, मतलब why I'm saying it, क्योंकि ना इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है, से ऑन अ थिंकर, तो बहुत ज्यादा उसमें यू विल फाइंड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी है। मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है सारी, बट समथिंग अननेसेसरी ऑल्सो, तो उसको भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके साथ भी ये इशू है जो हमको इसमें है, कि मतलब यू कैन यूज इट एज अ प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी भी डाल देता हूँ, फॉर प्राइमरी सोर्स इसको यूज कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं अपन, इसको भी प्राइमरी सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, इसको भी प्राइमरी सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। खैर मूविंग फॉरवर्ड, महापात्र सर के नोटों पे 11th 12th एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको सोशियोलॉजी का बिल्कुल बेसिक चाहिए, क्लियर क्या करने जा रहा हूँ, घुसने जा रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ, इफ इवन इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड सोशियोलॉजी येट, यू कैन जस्ट गो इनटू द एनसीईआरटी, आप डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल जाती है कहीं से भी, गो थ्रू देम।
अगर इस पसंद आ गया तो इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट होगा तो आप ये कर लोगे, इंटरेस्ट इसमें से जाग जाएगा फॉर सोशियोलॉजी इफ यू आर वेरी मच इनटू इट। तो सोशियोलॉजी के बेसिक्स कवर हो जाएंगे। मैंने ये नहीं करी थी पर्सनली क्योंकि मैं ऑलरेडी व्हाइल आई वाज इन माय कॉलेज, सो आई हैड डन बेसिक सोशियोलॉजी कोर्सेज बिकॉज इन माय कॉलेज इट्स मैंडेटरी टू डू ह्यूमैनिटी कोर्सेज। तो मेरे को आती थी, तो मेरे को पसंद थी मेरे को ऑलरेडी, तो आई हैव नॉट गॉन इनटू इट। बट मोस्ट पीपल सजेस्ट कि आप अगर फील्ड सोशियोलॉजी नहीं है तो यू शुड गो इनटू फॉर बेसिक्स। सो आई वुड पुट अ रिमार्क एज अ बेसिक of sociology, SOC, basic of sociology. है, so let's go move forward to Harlem Bosch. तो ये जो बुक्स है ना, हर्लम बोस हो गया, then we have Ritzer, and then we have which one is it? Yeah, these or maybe these also, these one also. मतलब ये जो बुक्स है तीनों, these are for selective reading, so these are all for selective. I will put S. Why I'm saying it for selective because as you know सारे टॉपर्स भी ये कहते हैं इसको पूरा नहीं पढ़ना है, बट इनको पूरा इसलिए भी नहीं पढ़ना है क्योंकि यू विल फाइंड के देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे सिलेबस से इंक्लाइन नहीं है, मतलब सॉरी इनलाइन नहीं है, सिलेबस से इनलाइन नहीं है, एंड यू विल फाइंड के क्वेश्चंस आते भी नहीं है। कई कई एस्पेक्ट ऐसे हैं इन बुक्स के। सो मैंने जो पता किया है और जो मेरे को जो मैंने जो रेफर भी किया है वो ये किया है कि हर्लम बोस में ये चैप्टर्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे। हालांकि ये भी चैप्टर पूरे नहीं पढ़ने, बट इसमें आप खुद डिसाइड करना आपको कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं। और रिट्जर में थिंकर्स, ये तो खैर बिल्कुल बेसिक एडवाइस है, सभी देते हैं कि रिट्जर में थिंकर्स कर लेना, बहुत बढ़िया होता है ना। तो ये हो गया इन बुक्स में। और ये बुक्स में ये नहीं कोई चॉइस नहीं दे रहा हूँ, ये बुक्स तो आप पूरी नहीं ही करना, आई डोंट थिंक सो कोई वैल्यू है इसमें अनटिल अनलेस यू वांट टू रियली गो इनटू कि सोशियोलॉजी में क्या है क्या नहीं है, जस्ट यू जस्ट वांट टू नो कि भाई रिट्जर ने क्या बोला, हर्लम ने क्या बोला, बस अगर उतना जानना है तो देन यू कैन गो इनटू इट। बट आई वोंट सजेस्ट कि पूरी बुक करनी है। इग्नू के बारे में मैंने बता दिया है कि यू कैन यूज इट एज अ प्राइमरी रिसोर्स, बट मतलब ठीक है, ट्रेड विद कॉशन, भटकने की ज्यादा संभावना है उसमें। देन वी हैव तुषार अंशु नोट्स। आई नो राइट नाउ आई डोंट नो कि कई लोग प्रेफर कर रहे हैं तुषार अंशु नहीं, बट व्हेन आई स्टार्टेड उस समय इट वाज अ हॉट थिंग। व्हेन आई स्टार्टेड तो द टॉपर दैट वर इन माय टाइम, उन्होंने उनके टाइम पे ये हॉट था, मतलब इट्स टू जनरेशन कह लो मतलब इन यूपीएससी टर्म टू जनरेशन पहले था ये हॉट मटेरियल। तो इट्स स्टिल हॉट, मतलब अगर आप इसको पढ़ो स्टार्टिंग से तो कुछ समझ में नहीं आता है ज्यादा, मतलब क्योंकि इट्स अ नोट्स ना, उनके खुद के पर्सनल नोट्स है तो थोड़े शॉर्ट है। तो आई विल स्टिल से सप्लीमेंट्री रीडिंग में सप्लीमेंट्री कर सकते हो, इसमें काफी थिंकर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, काफी थिंकर्स हैं यहाँ पे, काफी ही हैज यूज्ड सम व्हाट वी से some short some short blocks or paragraphs which are easy to remember, some short blocks, some short paragraphs. So these could be a good supplementary reading. You know. And he also have a good in that part also. He has some mnemonics also. Mnemonics, but remember उनके mnemonic है. It's hard to remember. मैंने उनके mnemonics try किए थे, मुझे नहीं समझ में आए थे, but उन्होंने खुद अपने mnemonics या short tricks बनाई हैं. So it's easier for him to understand. Then we have sleepy classes. Sleepy classes may, the main issue that I face is now sleepy classes is highly monetized. Monetized. Earlier it had huge free library, but abhi to nahi hai ye. So for now, it's not an option. I found only chapter 1 to 4 are doable from its resources, because after that na videos are there but you won't find the written material and you won't find various things. वो fast पढ़ाते हैं, द सर का उनका जो है वो फास्ट फास्ट पढ़ाते हैं, वो तो नोट्स नहीं मिलते हैं इसके, इट्स हार्ड टू फाइंड, बट इफ यू कैन फाइंड सम क्रैक और समथिंग लाइक दैट आई वुड सजेस्ट, बट अगर मिल रहा है तो यू कैन ट्राई। इट्स फॉर समवन हु इज फाइंडिंग हार्ड टू गेट ऑन टू स्टडिंग सोशियोलॉजी, सो इट कुड बी अ गुड इनिशियल पुश। इनिशियल पुश अच्छा है ये। सो यू कैन स्टार्ट विद चैप्टर 1 to 4, इनिशियल पुश के लिए इट्स गुड थिंग, इनिशियल पुश के लिए गुड थिंग है, और इफ यू लाइक इट देन गो कैरी ऑन, गो फॉरवर्ड, कैरी ऑन, है ना। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। नाउ कमिंग टू अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज में माय फंडा इज वेरी क्लियर, भाई अदर रिसोर्सेज विल हैपन ओनली व्हेन these all thing happen,
ये जब हो जाएगा then we will move into other resources. So यार these all things, मतलब what I found is ना देख, it's easier to say कि हाँ यार ये बुक भी अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है, but it's tough to incorporate in our strategy and study, because if we have to do with GS also, so if we don't have that much time, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो इसको हमें देखना पड़ेगा या बुक्स के लिए। आई वुड से कि यार अभी इट्स नॉट द टाइम, but you can note these books down when you're trying to fill the gaps. It's for filling the gaps only. These books are for filling the gaps. Yeah. Especially a book like Modernization in Indian Traditions to hai for to fill the gaps. But the rural sociology could be just used to fulfill the resources. But the primary resources which I told you, no, these P, they have everything. They have everything. They have everything. You just need to supplement it from the supplementary resources. If you don't like these supplementary resources, then you can use these filling the gaps option. And this primary resource, I would, I don't know, it's up to everyone, but I doubt this is primary resource because of its tediousness. It's very tedious. The tedious is primary resource, but it is a primary resource. So that was it for the resources. These are all basic resources I tried to cover. There are some funky resources also, I have some website also. I will try to provide it in the Telegram messages. So yeah, that was it. That was about resources. So if you have any comments about it or any suggestion, please suggest me also, because it's a pot never filled. तो भरने की बहुत जगह है. Okay.